that curiosity level is very high, and then you start fetching the information from any available sources which you have. And these days, as the mobile and the internet is so common, even a teenage will have a mobile at home, and they will start accessing all the laptops or any other gadgets from where you will access the informations about the sexual health, about how to have sexual intercourse, and all informations which is related to the sex or the sexual health. Right. So what I suggest being gynecologist is that one should be communicate, but वो पेरेंट्स से नहीं करेंगे या टीचर से नहीं करेंगे, क्यों नहीं करते हैं? आइदर उनको लगता है कि मुझे जज किया जाएगा तो मैं क्यों करूं, या टीचर मुझे अलग वे में ट्रीट करेंगी तो आई शुड नॉट डू दैट. क्या आपको रिलेशनशिप में कंफ्यूजन है, या फिर फैमिली में काफ़ी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या करियर में डायरेक्शन नहीं मिल रही, या फिर हेल्थ रिलेटेड काफ़ी इश्यूज हैं? सो डोंट वरी, आज ही जुड़िए टीवीटी ट्रिनिटी से. यहाँ पे हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे ऐसे सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर्स, लाइफ कोचेस, करियर कोचेस और काफ़ी प्रोफेशनल से जो आपकी दिक्कतों का सोल्यूशन निकालेंगे. अगर आपको लव लाइफ में क्लैरिटी चाहिए, या फिर करियर में डायरेक्शन चाहिए, या फिर अपने आप को मेंटली और फिजिकली फिट रखना है, सो आज ही हमसे जुड़िए एंड कॉन्टैक्ट अस ऑन 8448801064. Thank you. Welcome to another episode of TVT. Today we are here with Dr. Jyoti, who is a certified gynecologist, जिनसे हम बात करेंगे बहुत सारे important topics के बारे में, जैसे कि egg freezing क्या होता है, and about the awareness of sexual health कितनी important है ये. So ऐसी बहुत सारी interesting topics आज हमें जानने को मिलेंगे. So let's welcome Jyoti ma'am. Thank you so much, Niharika, for inviting me to your platform. So it's my honor and privilege to have the awareness about sexual health, to tell you about egg freezing and my viewers about egg freezing, the procedure and everything. So basically, if I talk about my profile, it is like I'm a gynecologist for the last 20 years, and I have done different courses or fellowship programs in infertility, in cosmetic gynae. I have done my post-graduations in gynecology, and I have been practicing here in Gurugram for the last 15 years as a hospital owner also, and heading the department of gynecology at Kamla Hospital, which is located in Sector 37C, Gurugram itself. And I'm a visiting consultant to a number of corporate hospitals in Gurugram, which includes Miracle, Cloud9, CK Birla types. And yes, definitely, if we talk about gynecology, and these topics are very close to my heart, and it is always happy to answer your questions. So Jyoti ma'am, this is such an important topic for this generation. So usually what happens कि जो इस generation के लोग हैं, they are hesitant to talk about sexual health. वो मतलब ओपनली बात नहीं कर पाते हैं, या फिर जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, वो अनऑथराइज्ड जो हमारी साइट्स होती है वहाँ पर चले जाते हैं, देन वहाँ से उन्हें क्या नॉलेज मिलती है वो किसी को नहीं पता चलता है. सो व्हाट वुड यू सजेस्ट कि मतलब क्या बेटर है उनके लिए, हमें ओपनली कितना बात करना चाहिए, और करे तो कैसे करें? Okay, thank you so much for the question. Number one thing here, if I say about sexual health, see, it is a very important topic जो आज के टाइम पे स्कूल्स में भी उतना प्रॉपरली कवर नहीं होता है. फैमिली ऑल्सो, बीइंग मदर्स एंड फादर, बहुत बिजी जो रहते हैं पेरेंट्स, वो बात नहीं करते हैं, या बच्चा उस चीज़ के लिए बात करने के लिए हेजिटेंट होता है. तो मुझे ये लगता है, एंड जब हेजिटेंट होता है तो आपका उस एज में, व्हेन यू आर इन योर टीनेज, दैट क्यूरोसिटी लेवल इज वेरी हाई, and then you start fetching the information from any available sources which you have. And these days, as the mobile and the internet is so common, even a teenage will have a mobile at home, and they will start accessing all the laptops or any other gadgets from where you will access the informations about the sexual health, about how to have sexual intercourse, and all informations which is related to the sex or the sexual health. Right. So what I suggest being gynecologist is that one should be communicative. Parents has to be aware of what their kids are doing, and see, mother, as we say, is the first teacher to the child, right? तो वहाँ से वो information pass होनी चाहिए, and kids should be that much comfortable with the parents as well as to the teachers. They should not hesitate asking anything about it to the parents or to the teachers. Number third comes is the doctor.
So these are the three authenticated sources, even more valuable and more informative than your Google, I would say. And the only problem lies is the busy life schedule of the parents, and kids being kids always, वो उनको शर्म आती है, you can say, वो अपने कलीग से ज्यादा पूछना प्रेफर करते हैं, कि दोस्तों में तो हर तरह की बातें कर लेते हैं, बट वो पेरेंट्स से नहीं करेंगे या टीचर से नहीं करेंगे। क्यों नहीं करते हैं? आइदर उनको लगता है कि मुझे जज किया जाएगा, तो मैं क्यों करूं, या टीचर मुझे अलग वे में ट्रीट करेंगी, तो आई शुड नॉट डू दैट, वेदर इट विल बी okay to talk about it or not okay to talk about with the parents. So my suggestion here is, you should be very much confident, and it should ideally come from the sources like your parents, your teachers and your doctor. So यदि आपको लगता है कि नहीं, मैं टीचर्स के साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ या मैं पेरेंट्स के साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो आई वुड ऑलवेज से टॉक टू द डॉक्टर्स, बिकॉज वी आर द थर्ड स्टेप फ्रॉम your health. So we will always guide you what sexual health means to you, how it should be addressed, how it should be taken at different ages, what precautions to be taken in teenage, what is your menstrual like cycles you should be aware of, what is safe period, what is unsafe period, and lot many things to tell you in your sexual health, which can directly come from the doctors also. So I think that's the take home here, that it should not be from the Google, it should be from the authenticated sources. Right. And you should not hesitate talking about it. So ज्योति मैम, as you have told earlier कि आपके पास काफ़ी केसेस आते हैं जो अंडर एज गर्ल्स होती हैं, वो भी आपके पास काफ़ी आती हैं, ठीक है। सो उनके ऊपर मतलब काफ़ी ये चीज़ मेंटली भी इफेक्ट करती है, राइट। सो मतलब आप क्या सजेस्ट करेंगे कि उनके लिए क्या सही है, या फिर ये चीज़ें मतलब अगर इन केस हो भी हो, क्योंकि हम आज भी देखें तो आज भी काफ़ी सारे केसेस ऐसे मिलेंगे हमें, सो उनसे वो कैसे डील कर सकते हैं? Okay, if I talk about again, the thing here is the age factor. Yeah. So the young girls who are coming to us either with a fear of having some kind of a sexually transmitted disease, I can quote an example here. I had a patient in my OPD. I would not say her a patient even. There was a teenage girl at an age of somewhere around 18 years. And the question which she asked me in my OPD was like, made me thought ke isko problem kya hai. She said, Dr. Jyoti, मेरे ना आप सारे टेस्ट करा दो प्लीज. Okay. So she was a corporate like working girl. And जब उसने मुझसे ये सवाल किया कि मेरे आप सारे टेस्ट करा दो, तो मुझे लगा कि नहीं, something is bothering her. So I asked her, मैंने कहा बच्चा तेरे को क्या टेंशन दे रहा है? What you are thinking? Then the whole story came up as I'm sexually active with my boyfriend, and now I'm afraid that मुझे कोई sexually transmitted disease तो नहीं हो गई है, because we had a intercourse without condom, right? So that was the question which she came up with, जिसके लिए वो सब अपने टेस्ट उस टाइम पे कराना चाहती थी. What makes me think of is कि उस एज में जहाँ पे उसको सिर्फ एक सेक्सुअल इंटरकोर्स ने इतना मेंटली परेशान कर दिया, she took 5-7 days to think and then visited me. So the point here is that having a safe sexual practices, we are now focusing on safe sexual practices. It is not only about that we say that unprotected sex, or we say that sexual intercourse is prohibited or you should not do it. What we educate the girls is that how they can prevent the unwanted pregnancies. Number one, fear of having an unprotected sex. Number second is how they can protect themselves from having the sexually transmitted diseases. So it's not about having an intercourse, it is all about having a safe intercourse. So ma'am, इसी से एक क्वेश्चन आता है कि in earlier times क्या होता था, वहाँ पे होम डिलीवरीज होती थी, लाइक घर पे ही सारी मतलब प्रोसीजर होता था डिलीवरी का. देन आज के टाइम की हम बात करें तो डॉक्टर्स वुड सजेस्ट कि आपको हॉस्पिटल ही आना चाहिए, वहाँ पे मतलब हमें पूरा मतलब जो भी प्रोसेस है वो कराना चाहिए. सो अब अगर हम पहले की टाइम की बात करें और आज की टाइम की बात करें तो उनमें कितना डिफरेंस है, वो आप बता सकते हैं? ओके, सो इफ आई टॉक अबाउट, यदि आप भी बात करेंगे कभी अपनी मदर से, अपनी दादी से, तो सब लोग ये कहते हैं कि हमारी तो घर में ही डिलीवरी हो गई थी, राइट? सो इट स्टार्टेड विद दैट होम डिलीवरी कॉन्सेप्ट 20 years बैक, और आई वुड से 40 years बैक, जो हमारी दादी और मम्मी के टाइम में हुआ था. बट आफ्टर दैट द कंसेप्ट ऑफ हैविंग द हॉस्पिटल डिलीवरी हैज कम अप, wherein I would say कि it is always beneficial for the health of the mother
एंड फॉर द हेल्थ ऑफ द न्यू बॉर्न। पहले आपने सुनते होंगे कि 5 बच्चे हुए, 6 बच्चे हुए, दर्जनों बच्चे होते थे और उसमें से 2-4 जिंदा रहते थे, बाकी मर जाते थे। तो वो जो न्यू बॉर्न मोर्टेलिटी थी बहुत हाई होती थी। कुछ बच्चा होने के बाद मर गया, कुछ अंदर ही मर गया। सो वो सब चीजें अब आप कभी नहीं सुनते होंगे। देयर आर हार्डली द न्यू बॉर्न मोर्टेलिटी हैज come down so well with the science advancement and hospitals and the facilities which we provide nowadays कि वो जो डेथ रेट बच्चों में है वो बहुत कम हो गई है। आजकल 1-2 बच्चे करते हैं एंड दे आर गुड हेल्दी इंडिविजुअल्स। एंड जहां हम बात मदर की करते हैं तो मदर के लिए भी आपने बहुत बार सुना होगा, यदि आप कभी अपने मम्मी नानी वगैरह से बात कीजिएगा कि वो बोलेंगे कि उसकी डिलीवरी के टाइम पे डेथ हो गई थी, वो डिलीवरी कराते हुए या बच्चा होते ही मर गई थी। सो ये सारी चीजें अब बहुत कम हो गई हैं। यदि आप रेगुलर अपना ट्रीटमेंट किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास लेते हैं, पूरा 9 महीने का सफर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ पे यू हैव द शेड्यूल्ड विजिट्स, प्रॉपर अल्ट्रासाउंड्स, प्रॉपर ब्लड टेस्ट, जहाँ पे आपकी हेल्थ को भी सेंटर पॉइंट रखा जाता है एंड जो होने वाला बच्चा है उसके लिए भी जो जो प्रिकॉशंस, जो जो चीजें उसकी हेल्दी बर्थ के लिए इंपॉर्टेंट हैं वो सब हम करते हैं। एंड हॉस्पिटल डिलीवरीज आर ऑलवेज एंड ऑलवेज बेनिफिशियल मदर, बेबी एज वेल एज फॉर योर लॉन्ग टर्म लाइफ। यदि आपकी डिलीवरी के टाइम की कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, कभी कभी वो बहुत लंबा टाइम तक चल सकती हैं। तो यहाँ पे ये चीज तो साइंस की एडवांसमेंट है कि आप होम डिलीवरी से हॉस्पिटल डिलीवरीज पे लोग आ चुके हैं। इवन हॉस्पिटल डिलीवरीज में भी विद द फैसिलिटी ऑफ न्यूबॉर्न एज वेल एज फॉर द एंटीनेटल पूरा का पूरा जो 9 महीने का सफर है, फिर डिलीवरी, यदि जो डिलीवरीज नॉर्मल नहीं हो सकती उनके लिए ऑपरेटिव फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, सारी कॉम्प्लिकेशंस को हैंडल करने के लिए हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं, डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। तो आई थिंक मदर की डेथ, बच्चे की डेथ दोनों बहुत कम हुई हैं विद हॉस्पिटल डिलीवरीज। राइट मैम। एंड नाउडेज मैम हम एक टॉपिक के बारे में काफ़ी सुनते हैं, सर्वाइकल कैंसर। सो एक बार आप बता सकते हैं कि व्हाट इज इट एग्जैक्टली एंड हाउ डज इट हैपन? ओके, सर्वाइकल कैंसर की यदि हम बात करते हैं तो इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर्स इन फीमेल इन इंडिया, आई वुड से, and it is the only cancer, or I would say it is one of again the cancer which is preventable. सर्वाइकल कैंसर कहते किसको हैं? सर्वाइकल कैंसर लोग सर्वाइकल सुन के कभी कभी तो गर्दन वाला सर्वाइकल सोचने लग जाते हैं। आई हैव टेकन न्यूमरस लाइक lectures on this in schools and colleges wherein cervical के नाम से लोग अपने neck वाला area को समझते हैं। So people are still not much aware about cervical cancer, number one thing. So cervical cancer है क्या? जो आपकी बच्चादानी है उसके मुंह के कैंसर को हम cervical cancer बोलते हैं। So that lower most part जो यूट्रस का है उसको cervix बोला जाता है और उस जगह के कैंसर को cervical cancer बोला जाता है। सो सर्वाइकल कैंसर की यदि हम बात करते हैं तो जैसे मैंने आपको कहा कि प्रिवेंटेबल भी है एंड मोस्ट कॉमन कैंसर भी है। अब इससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो बहुत सारे सवाल आप के दिमाग में भी आ सकते हैं एंड इट इज प्रिवेंटेबल। ओके, सो मैम सिम्टम्स क्या होते हैं इनके सर्वाइकल कैंसर के? ओके, सर्वाइकल कैंसर की यदि हम बात करते हैं तो सिम्टम्स आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड हो सकते हैं। इट कैन बी इरेगुलर साइकिल्स, इट कैन बी अ हेवी साइकिल, इट कैन बी इंटरमिटेंट ब्लीडिंग। मीन्स कि आपको एक पीरियड का एक पर्टिकुलर डेट है और अगले पीरियड की डेट से के बीच में ही कभी कभी स्पॉटिंग हो रही है। इट कैन आइदर बी पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग, दैट इज आफ्टर इंटरकोर्स आपको भी यदि ब्लीडिंग हो रहा है, दैट इज नॉट अ नॉर्मल ब्लीडिंग, उसके लिए आपको इन्वेस्टिगेट कराना होता है। सो समथिंग डिस्टर्बिंग इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज वन मेजर सिम्टम। देन इफ आई टॉक अबाउट द लोअर एब्डोमिनल पेन इज अनदर थिंग पीपल कम अप। The third thing is which is for the symptom of cervical cancer is a foul smelling discharge. If a woman is having a repeated vaginal infections and there is a change in the coloration of the vaginal discharge or it is smelling, so that is a abnormal vaginal discharge is another one symptom. But if I talk about these symptoms, they should never be neglected. क्योंकि हम बहुत बार क्या करते हैं, हमें लगता है कि ये नॉर्मल होगा, हम आपस में ही अपने आप से ही बात कर रहे होते हैं कि शायद ये नॉर्मल होगा, चलो जाएंगे डॉक्टर के पास, अभी देख लेती हूँ। और सो वी कीप इग्नोरिंग द थिंग्स एंड सिम्टम्स आर द अलार्मिंग साइंस। सो उनको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। वट एवर इज देयर यू शुड विजिट अ डॉक्टर, हैव अ कंसल्टेशन, डिस्कस द थिंग्स एंड इफ ऑल इज वेल देन it is good to go.
Yeah. So, ma'am, what are the trigger points basically? Why does it happen? ओके, सर्वाइकल कैंसर की यदि हम बात करते हैं, सो इट बेसिकली स्टार्ट्स विद HPV वायरस, वी से दैट इज नॉन एज ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। वो आपके सर्विक्स के ऊपर जो आपके नॉर्मल सेल्स होते हैं, जब वो धीरे धीरे डेवलप होके उस इन्फेक्शन की वजह से एबनॉर्मल सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, सो दैट इज बेसिकली सर्वाइकल कैंसर। सो इट इज HPV। ओके, सो मैम आपने बताया कि प्रिवेंटेबल भी है, राइट? राइट। सो अगर जैसे कि हमें सिम्टम्स दिख रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो हम उन्हें प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? ओके, सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन की यदि हम बात करते हैं आज के टाइम पे, तो देयर इज अ वैक्सीन विच इज अवेलेबल नाउअडेज, एंड सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन अवेयरनेस प्रोग्राम, सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन के लिए तो हम इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं कि वी वांट बाय 2030 दैट maximum women should be covered with cervical cancer vaccine. It is like available at present everywhere in the private hospitals. So women can go and take the cervical cancer vaccine, and definitely it's a preventive measure. तो cervical cancer vaccine जैसे हम बचपन से जब पैदा होते हैं तब कभी BCG vaccine, कभी hepatitis vaccine, so this has also come up with a vaccine now. So it's known as, it comes with the names like Gardasil, it comes with the name Cervarix. So different vaccines are there which you should be educated and aware of that they are available, and you can have a visit with the doctor and get your vaccination done. ऑल्सो मैम, आजकल हम देखते हैं कि अगर जैसे कोई भी हमें सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो यूजुअली लोग क्या सोचते हैं कि इट्स सच अ हैसल कि उन्हें डॉक्टर के पास जाना होगा, टेस्ट कराने होंगे। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, मतलब क्या चीज़ बेटर रहेगी उनके लिए? ओके, यदि हम इन्वेस्टिगेशंस और टेस्टिंग की बात करते हैं, सो डिफरेंट एज ग्रुप शुड बी ट्रीटेड डिफरेंटली। हम हर एज के फीमेल्स को अलग तरीके से उसको गाइड कर रहे होते हैं। वैक्सीन की जहां हमने बात की प्रिवेंशन के लिए, सो द एज ग्रुप स्टार्ट्स फ्रॉम 9 years. ओके, सो जब आप 9 साल के हैं तभी से वैक्सीन लेना शुरू कर सकते हैं, टिल यू स्टार्ट योर सेक्सुअल एक्टिविटी, नंबर वन थिंग। और इफ यू आर सेक्सुअली एक्टिव ऑल्सो, सर्वाइकल वैक्सीन इज प्रेफरेबली गिवन टिल 45 years ऑफ एज इवन। वहां तक भी लोग कई बार उसको ले रहे होते हैं। सो आइडियली 9 to 14 years की जो एज ब्रैकेट है हमारे बच्चों की, उसमें हमें इसको जरूर देना चाहिए before they land up into the sexual like activity in their future life. So that is the best age. पहली चीज तो ये थी। यदि हम बात करते हैं इसके इन्वेस्टिगेशन की, so we say that there is a very simple test which is there to rule out cervical cancer, and it is known as pap smear. पैप स्मेयर भी बहुत बार आप लोग सुनते होंगे कि पैप स्मेयर हर जगह बहुत ज़्यादा प्रमोट भी होता है। सो इट्स अ वेरी सिंपल OPD टेस्ट जिसमें हम आपके सर्विक्स से थोड़ा सा लिक्विड जो होता है वो लेते हैं एंड उसको हम टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। सो वहाँ से हमें पता चलता है कि किसी भी टाइप का कोई भी कैंसर सेल ग्रो तो नहीं कर रहे हैं। एंड इट्स even a cheap test, I would say, not very costly one, and it's very easy to do, painless test, which ideally a woman, if having a symptom in the 30s, they can undergo, and by default, if you are in a age bracket of 40s, तो 40 year के बाद तो we say that yearly or 2 yearly we are having a routine pap smear. So it is not that when you have a symptom, तो हम वो टेस्ट करा रहे हैं। If I say it is a routine screening test, it should ideally be done on yearly basis. And यदि उसमें कुछ आता है तो हम उसको कितना फ्रीक्वेंट करेंगे या नहीं करेंगे, वो फिर आपकी डॉक्टर की कंसल्टेशन के ऊपर है कि उसको हमें आगे कैसे लेके जाना है। सो ज्योति मैम, वी वर डिस्कसिंग अबाउट सर्वाइकल कैंसर, तो इसी से मेरा क्वेश्चन आता है कि सर्वाइकल कैंसर को लेकर लोगों के मिथ्स क्या होते हैं, तो वो आप उन्हें ब्रेक कर सकते हैं हमारे लिए? यस, ऑफ कोर्स। पहला मिथ जैसे मैंने कवर किया अभी कि सर्वाइकल के नाम से ही लोगों को सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। जब हम शुरू करते हैं इस टॉपिक को कहीं पे भी बोलना, तो हमें बताना पड़ता है एक्चुअली में हम सर्वाइकल किसके लिए बात कर रहे हैं। तो सर्वाइकल मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया कि इट इज नॉट द नेक वाला सर्वाइकल, इट इज द यूट्रस वाला सर्वाइकल, राइट? सो दैट्स द मोस्ट कॉमन मिथ एज पर द लोकेशन ओनली। देन सेकेंडली जो लगता है, जो जनरली लोगों को ये लगता है कि अभी तो मेरी बहुत यंग एज है, मुझे क्यों जाना चाहिए डॉक्टर के पास, मुझे थोड़ी ना कैंसर होगा। सो द एज एंड द कैंसर, सो द
एज वाला जो फैक्टर है या मिथ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आपको ये सोचना चाहिए कि नो, इवन द स्लाइटेस्ट ऑफ द सिम्टम एट in the age bracket of 30s might come up with a cervical cancer. So आपको वो एज वाला फैक्टर को दिमाग में कभी भी नहीं रखना चाहिए. इफ यू हैव सम काइंड ऑफ अ सिम्टम यू शुड ऑलवेज कंसल्ट अ डॉक्टर, क्योंकि 30s में भी सर्वाइकल कैंसर होता है. आपको ये नहीं है कि आपको 50 साल की उम्र में ही जाके कैंसर होगा. So your age is important here. Okay. Then third myth about cervical cancer, if I say कि लोग ना इस चीज से डरते हैं कि जाएंगे तो कहीं कैंसर ना निकाल दे डॉक्टर, तो डॉक्टर के पास जाना ही एक सबसे बड़ा उनके लिए वो है कि नहीं, मैं जाऊंगी तो मुझे कोई ना कोई टेस्ट लिख दिया जाएगा. या फिर आप ये कह सकते हैं कि डॉक्टर जब टेस्ट लिखते हैं तो लोगों को, और वो जब सब नॉर्मल आ जाते हैं तो एक कंफ्यूजन जो रहता है या एक कॉमन उनका ओपिनियन जो रहता है कि आपने इतने सारे टेस्ट करा लिए, कुछ निकला तो है नहीं. सो कुछ निकला तो है नहीं के लिए टेस्ट नहीं कराए जाते. दैट शुड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड कि नहीं निकला तो you should be happy about it. हम कुछ निकालने के लिए टेस्ट नहीं कराते, हम आपको कुछ ना निकले इसलिए टेस्ट कराते हैं. Right? So you should not hesitate going to the doctor. So I think that's the most common thing here. And as I said, it is preventable. So वैक्सीन की जहाँ हम बात करते हैं आज के टाइम पे, तो लोगों को वैक्सीन को लेके भी थोड़ा सा मिथ है कि पहले चीज तो उसके कॉस्ट को लेके, दूसरी चीज उसकी इफेक्टिवनेस को लेके कि पता नहीं कितना असर करेगी. तो जहाँ हम ये बात करते हैं कि कितना असर करेगी, तो कुछ तो करेगी ही. यदि मैं बहुत लेमन लैंग्वेज में आपको कहूँ तो any prevention is always a better prevention. ये जरूरी नहीं है कि वो 100% प्रिवेंट कर देगी. यदि वो 50% भी करती है तो उसका कोई नुकसान नहीं है. फिर मेरे पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं इस वैक्सीन को लेके कि जिन्होंने कोविड वैक्सीन लगवाई थी उनको हार्ट अटैक्स आ गए, या वो लोग अभी उस चीज के लिए वो नहीं होते, तो आप सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लगाओगे तो कल को इसको लेके भी कुछ हो जाएगा. सो इट इज अ टोटली सेफ वैक्सीन हियर, आई एम सेइंग. It has come up, like now years of studies have come up, and it is totally preventable prevention, as we have already read about it कि शुरू से सुनते आते हैं ना, prevention is always better than cure. तो इससे पहले हो, उससे पहले वैक्सीन का रोल है. बहुत लोगों को मिथ ये भी रहता है कि जब कुछ होगा तब लगवा लेंगे. तो अगेन the fact is the vaccine is a preventable measure, it is not a treatment. You should understand this कि आपको तब लेना है जब आपको कुछ भी नहीं है, you are healthy enough in 9 to 14 years, right? So I think these are the things. Also मैम, सोशल मीडिया पर हम काफ़ी देखते हैं आजकल एक ट्रेंडिंग टॉपिक है एग फ्रीजिंग. सो बेसिकली व्हाट इज एग फ्रीजिंग और लोग ये क्यों करवाते हैं? Egg freezing, if you are asking me about the how do I define egg freezing, is कि जो आपकी ओवरी से हर मंथ में अंडे बनते हैं उनको हम आपके लिए फ्रीज करके रखते हैं. There are banks wherein we are freezing your eggs for the time limit, जब तक आप उनको चाहते हैं कि मुझे 5 साल के लिए अपने एग्स फ्रीज कराने हैं. और वो आया कहाँ से कॉन्सेप्ट? बिकॉज ऑफ दिस मॉडर्नाइजेशन, बिकॉज ऑफ so much affluent society we are into this, because of the women empowerment, because of the females opting for high career wherein they are thinking कि अभी तो मेरी पढ़ाई का इतना सारा चीज है, अभी तो मुझे अपना फ्यूचर सेट करना है, अभी तो मुझे मेरी जर्नी प्रॉपरली पहले अचीव करनी है. आई वॉन्ट टू हैव दैट हाइट एंड दैट गोल इन माई लाइफ जो मुझे अचीव करने हैं. बच्चा हैज कम अप एज अ सेकेंडरी नाउ फॉर द विमेन ऑल्सो. पहले सिर्फ उनके पास एक बच्चा पैदा करने का काम होता था जो हाउस वाइफ होती थी. नो डाउट अबाउट इट कि और भी बहुत घर के काम होते हैं, बट स्टिल दैट वाज द मेन थिंग दे यूज्ड टू डू, राइट? तो वहां पे उन लोगों के लिए वो चीज इंपॉर्टेंट ही नहीं थी कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट हो. अब क्योंकि इस चीज की नीड भी है एंड आपको 20 साल की उम्र में शादी हो ही नहीं रही है, 30 साल में तो शादी हो रही है, 40 साल में आप बच्चा सोच रहे हैं करने के लिए, तो आपकी एग की जो क्वालिटी है इट विल गो डाउन एवरी ईयर, राइट? तो वहां पे इफ यू आर ट्रैवलिंग अब्रॉड फॉर योर स्टडीज, इफ यू आर नॉट रेडी एट प्रेजेंट, सो देयर इज दिस इज द चॉइस एंड दिस इज द प्रोसीजर ऑफ चॉइस कि हम आपके एग्स को फ्रीज कर दें. एक और इम्पॉर्टेंट कैटेगरी जहां पे ये इम्पॉर्टेंट है एग फ्रीजिंग इज द कैंसर पेशेंट्स, right? A young girl having any type of a cancer, if she is
planning for a chemotherapy, radiotherapy or any other procedure, तो उस ट्रीटमेंट के दौरान उसकी ओवरीज से अंडे की क्वालिटी जो होगी वो कम हो जाएगी। एंड यदि वो कम हो जाएगी तो जब वो कैंसर के ट्रीटमेंट से फ्री होगी और बच्चा प्लान करना चाहेगी तो वो चीज उसके लिए हैम्परिंग हो जाएगा। सो दोज आर द आइडियल फीमेल्स जहां पे हम आपको कैंसर ट्रीटमेंट पे जाने से पहले आपके एग्स को फ्रीज कर देते हैं। और जब आपका ट्रीटमेंट पूरा हो जाता है, व्हेन यू वांट टू स्टार्ट योर फैमिली, हम आपके एग्स को निकालते हैं एंड वी मेक यू कंसीव। सो दैट इज ऑल अबाउट एग फ्रीजिंग। सो ज्योति मैम, अभी जब हम एग फ्रीजिंग की बात कर रहे हैं तो आप ये बता सकते हैं कि मतलब किन एज ग्रुप को करानी चाहिए, किन के लिए बेस्ट रहता है, किस टाइम पर? ओके, एज ग्रुप, जब मैंने आपको अभी एग फ्रीजिंग बताया क्या होता है, तो उसके साथ ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि आपके जितनी यंग एज के अंदर जो क्वालिटी ऑफ एग्स होती है वो उतनी ही बेटर होती है। सो मीन्स कि यदि आप अपने 20s और 30s में अपने एग्स को फ्रीज कराएंगे, 20s में कराते हैं तो वो ग्रुप ऑफ एग्स जो निकलेगा वो 30s के कंपैरेटिवली बेटर निकलेगा। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ये डिसाइड करना है कि मेरा फ्यूचर गोल क्या है, कि मैं अभी आज के दिन यदि 30 में हूँ या 35 हूँ या 40 हूँ और मुझे अगले 5 साल नहीं करना है बच्चा या 2 साल नहीं करना है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट कि हम किस टाइप का एग आपका निकाल पाएंगे एंड कितने टाइम के लिए आपको फ्रीज करने हैं। सो एज ब्रैकेट इन 20s एंड 30s इज द बेस्ट एज। ओके मैम। एंड मैम, इसका प्रोसीजर क्या होता है एग फ्रीजिंग का? एंड ये अगर मैं पूछूँ तो ये पेनफुल भी होता है हमारे लिए? नो, एग फ्रीजिंग जब हम करते हैं तो हम कहीं ना कहीं आपको कुछ इंजेक्शंस देते हैं, आपको स्टिमुलेट करते हैं। इट इज अ प्रोसीजर फॉर ऑलमोस्ट 2 weeks टाइम, वेयर इन वी आर स्टिमुलेटिंग द ओवरीज। और ओवरीज को जब हम स्टिमुलेट कर देते हैं तो उसके अंदर एग्स की प्रोडक्शन होती है। सो जब वो एग्स की प्रोडक्शन आपके ओव्यूलेशन से पहले हम उनको विड्रॉ कर लेते हैं। सो एक पूरी की पूरी क्रॉप ऑफ एग्स निकलता है जिसको हम निकाल लेते हैं एंड देन वी फ्रीज देम। इट टेक्स ऑलमोस्ट 2 weeks, सो द ओव्यूलेशन टाइम इज 14 days। सो कुछ दिनों के इंजेक्शन फॉर द स्टिमुलेशन एंड देन वी कीप असेसिंग बाय अल्ट्रासाउंड आपकी एग्स कितने बन गए हैं या किस साइज के हैं, एंड देन इट इज टेकन। थर्डली, पेन और पेनलेस की जहां हमने बात की, एग फ्रीजिंग टोटली ऑलमोस्ट पेनलेस प्रोसीजर है। इंजेक्शंस जो आपको लगते हैं वो आप घर पे भी ले सकते हैं। सो आपका डे टू डे एक्टिविटी भी हैम्पर नहीं होता कि आपको छुट्टी लेना है ऑफिस से, या आप पेनफुल है कि आप घर में ही रहना चाहेंगे, बाहर नहीं जा सकते बिकॉज दर्द है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यू कैन टेक दोज इंजेक्शन योरसेल्फ। नंबर 1 थिंग, आपको सिर्फ डॉक्टर के पास ओपीडी में ही जाना है एंड जिस दिन आपका प्रोसीजर प्लान होता है, जिस दिन हमें एग्स विड्रॉ करने होते हैं, उस दिन सिर्फ आप 2 से 3 घंटे के लिए हॉस्पिटल में रहते हैं, जहां पे हम आपको एनेस्थीसिया के अंदर ही उन एग्स को निकालते हैं, सो दैट इट गोज टोटली पेनलेस। उसके बाद आपको माइनर किसी को ब्लॉटिंग रह सकता है एंड 2-3 घंटे के बाद यू आर बैक टू योर होम एंड फ्रॉम डे 2 ऑनवर्ड्स यू कैन रिज्यूम बैक टू योर ऑफिसेज एंड योर डेली वर्क। छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स यू कैन से लाइक ब्लॉटिंग है या हल्का फुल्का डिस्कम्फर्ट एक आध दिन के लिए रह सकते हैं, अदरवाइज साइड इफेक्ट्स भी नहीं है एंड पेन भी नहीं है। ओके। एंड मैम, लास्टली अगर हम एग फ्रीजिंग की बात करें तो इसका फाइनेंशियल बर्डन जो है वो कितना हो सकता है? ओके, एग फ्रीजिंग के यदि हम फाइनेंसेस की बात करते हैं तो जो हार्मोनल इंजेक्शंस हम आपको लगाते हैं दे आर लिटिल कॉस्टलियर वन एंड प्रोसीजर इज डन अंडर एनेस्थीसिया, सो डेफिनेटली वो एक कॉस्ट ऐड होती है। एंड थर्डली, आपको कितने ईयर्स के लिए उनको फ्रीज कराना है, सो डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन ऑफ द टाइम जितना आपको चाहिए उसके हिसाब से उनका बैंक्स का चार्जेस होता है कि 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का और उससे आगे का, राइट। मोर और लेस यदि हम कॉस्टिंग, इट ऑल्सो डिपेंड्स कि किस टाइप की लैब है, किस टेक्निक से कर रहे हैं, और every system has their own cost, but on an average it might go from 80-90,000 to 1.5 to 2 lakh rupees depending upon what type of facility we are availing. To my viewers, if you have any kind of questions or any kind of queries regarding the health issues, you can message me. The details are there on the screen, and for any queries I'll be happy to help you in your future journey.